So first of all, I just want to introduce with all the speakers what we have today from different area and from the different companies and different zoner of the cost accounting field. Uh, Let me just add this out. Okay, so there are five speakers for now today, guys. So first of all, there is CMA Pankaj Bachwani. He is currently in Dubai and working there. And we have CMA Anshika Tyagi. She is in Delhi right now. CMA Rohan Sharma, he is from Agra. CMA Pankaj, Thing. what's your full Pankaj Singh, yeah, right. CMA Pankaj Singh, and he is in Dhanbad. And CMA Robin, and he is currently in Pune. So today, the basic and the most important topic that all of we are facing, we are going to talk about that how we are still struggling, and most of the CMAs are still struggling and thought of that what to do next, even after passing out the CMA examination, because lots of the things which are there are not aware while we are studying, but once we pass out and once we finish our study, we get to know a lot of the more things that we need to know, that while we are in a study process we didn't aware about all these things, that we have to know about all these things also. So the two major topic that we are going to discuss in this webinar today is that the challenges faced by the pass out student after passing out the examination, of course, and how to improve the efficiency in the study, that how you can able to study more and have some more efficiency whatever the stuff you are studying from whatever the teachers you are studying. So first, I'll go with some topics. So let's just start with Anshika. Anshika, you are ready to go, right? It's audible to you, Yeah, ta? yeah, So first of yeah. all, It's audible to me. so So it's basically, there जो in my, टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस हाँ, करूंगी, uh, Anshika, what let me just ask, then you just add on whatever the topic you can add in that, and your experiences, okay? okay, Okay. okay, So while we are studying, the basic in mass of the student, not for everyone, but most of the student, it's there in the mind that once we finish the study, it's end. No more struggling, no more study, no more keep on doing the things for upgrading yourself. This is the basic funda what we are carrying on in our head while we are studying, that once it's the examination is over, so our phase is also over, we do not need to go anything for else, we can just come out for our packages, how much money I'm earning. But how it needs to be grow and how it need to be yeah, changes, it's not thinking that while we are yeah. studying, it's not there in our mind. So what do you think that the passing out the CMA is just a end or a new yeah. beginning? It's as per my experience, ये मतलब मेरे एक्सपीरियंस से हो या किसी अदर के एक्सपीरियंस से, इट्स टोटली लाइक कि ये आपके लिए एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है. एंड होगा, लेकिन किस चीज का होगा? सिर्फ आपकी स्टडीज का एंड होगा. और एंड भी हर किसी के लिए स्टडीज का नहीं होगा. स्टडीज में भी कुछ बच्चे जो सीएमए कर लेते हैं वो फर्दर स्टडीज के लिए देखते हैं. तो एक पॉइंट पे हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा एक प्रोफेशनल जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगी. एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम एंटर करेंगे, एक नए वर्ल्ड में हम एंटर करेंगे. तो यहाँ पे हमारी स्टडीज एक पार्ट को एंड हो सकती है. स्टडीज सिर्फ और सिर्फ जो हम क्लासेस वाला रेगुलर वाली स्टडीज हम बोलते हैं वो एक टाइप से एंड हो सकती है. लेकिन फिर भी यहाँ से हमारी एक नई जर्नी स्टार्ट होगी. हम एक नए वर्ल्ड में एंटर करेंगे. और हम लगता है कि एक नए वर्ल्ड में जब हम एंटर करेंगे तो हम वहाँ पे अपने हमें अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट करना है. प्रेजेंट करने नए वर्ल्ड में हमें बहुत सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हमें बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ेगा. अभी तक जो हमने जो कंपटीशन फेस किया था वो हमने सिर्फ एक स्टूडेंट लेवल का कंपटीशन फेस किया था, और वो भी अपने स्टैंडर्ड के लोगों के साथ में कंपटीशन फेस किया था. लेकिन जब हम एक नए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करेंगे वहां पे हमें कंपटीशन जो फेस करना है वो उन लोगों के साथ कंपटीशन करना है. तो अभी तक जो हम स्टडी में कर रहे थे, जो हम सीएमए स्टूडेंट, मैं भी जब सीएमए इंटर में थी तो मुझे लगता था कि बस सीएमए क्लियर कर लेना है और उसके बाद तो अपने मजे हैं, उसके बाद तो कुछ नहीं है. लाइक उसके बाद तो अच्छा पैकेज मिलेगा, अच्छा पैकेज Yeah, मिलेगा और अपने जैसे मर्जी लाइफ होगी वैसे जीना पड़ेगा, कोई पढ़ाई का बर्डन नहीं होगा this ऐसे. is the लेकिन problem. ऐसा एक्चुअल में This नहीं is है. actually a जब मेरा problem. फाइनल क्लियर हुआ तब मुझे पता चला. या
तो मुझे भी ऐसे लगा था कि सीएमए क्लियर करना है बस, एंड देन उसके बाद तो पैसों में खेलना है, मेरा यही था। लेकिन जब मैं फाइनल में आई, फाइनल में आके मुझे पता चला, लाइक जब कैंपस मेरा नहीं हुआ था, अभी तक ये था कि जब मैं 3 अच्छी कंपनी में शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगा मेरा कैंपस भी, लेकिन जब कैंपस नहीं हुआ उसके बाद का जो स्ट्रगल मैंने फेस किया, उसके बाद जो मुझे पता चला कि यार ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुमने क्लियर कर लिया तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी। जॉब तो मिल जाती है एक्चुअली, लेकिन उसके लिए आपको इतना सारा कंपटीशन फेस करना होता है। मैंने इतनी सारी कंपनीज में इंटरव्यू दिए थे, कहीं पे मेरा नहीं हुआ। कभी कभी मुझे लगता था कि हो जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझ में कमी थी। तो उन चीजों पे हमें वर्क करना पड़ेगा जिन चीजों में हमें कमी थी। तो बस मैं तो यही बोलूंगी कि यहाँ से हमारी एक नई जर्नी स्टार्ट होती है। हमें एक नए कंपटीशन में लाइक लोग, ऐसे लोगों के साथ कंपटीशन फेस करना होता है जो, जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो अब जैसे बहुत सारी वैकेंसी होती है, उसमें सीए वालों को भी बुलाया जाता है, सीएमए वालों को भी बुलाया जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डमी वाले होते हैं, उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता है, और उनको फेस करना है उस बंदे के साथ कंपटीशन जो सीए कर रखा है, जिसने सीएमए कर रखा है, उसको 5 साल का एक्सपीरियंस है। वो लोग भी उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए आते हैं। तो आप सोच सकते हो कि आपका कंपटीशन लेवल कहाँ जाने वाला है। तो उस चीज पे आपको वर्क करना है, तो आपका एक नया जर्नी स्टार्ट होगी। नई जर्नी के लिए आपको अभी से प्रिपेयर रहना है, अभी से अपना माइंडसेट पे प्रिपेयर करके चलना है कि आपको फ्यूचर में क्या क्या चीजें फेस करनी है। और फ्यूचर में सबसे बड़ा होता है कि आपको कंपटीशन जो है, जॉब के लिए कंपटीशन फेस करना है, और आपको इतना एबल होना है, हर आपकी अपनी इतनी स्किल डेवलप करनी है कि कैसे भी करके आपको जिस जॉब के लिए जा रहे हो आपको वो ग्रैब करने की कोशिश करना है। दैट्स इट। Okay. So anybody else, guys, what do you think? It's a new start or ending? What do you say about this? About after passing out? So it's a new journey or it's a new start or what? Anybody else want to share some experience? It's the actual start, I would say. It's not a new Yeah. beginning. It's not something that we were thinking कि अब क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद there's no nothing. The क्लियर होने के बाद ही आपकी असली जर्नी स्टार्ट होती है। सो मैं सजेस्ट Exactly. करूँगा, अगर आपकी सोच ऐसी है कि मेरा तो बस क्लियर हो जाए एंड देन आई विल गेट अ जॉब और मैं मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट. लेट मी जस्ट गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ रियलिटी चेक. रियलिटी ये है कि यू हैव टू ऑलवेज स्टे अपडेटेड with all the laws and procedures that are going around the world in order for you to be, competent and look for better opportunities. You have to always keep on looking for developing your skills, because it's a huge world. You cannot know everything by just the degrees that you've got. You would have to learn a lot from the practical world. So if you need to shift your mindset from, you know saturated mindset to a growth mindset, that will take you to a new heights that you might not have even thought that मैं इतना कुछ कर सकता हूँ. So just try to focus on developing your skills and don't think कि इसके बाद ऐसा job लग जाएगा और ऐसा हो जाएगा. It's not at all. The reality is job लगेगा, then you still have to work on things, you still have to grow, you still have to keep yourself updated, and that's the key. Yeah. Okay. So thank you so much, Anshika and Pankaj, for sharing your views on this. So next, I want to go with Robin. So, Robin, there are many challenges we are facing while we are preparing for the campus and Hmm. interviews. So, what are the stuff that we are ignore while we are studying? While we are studying, we can able to prepare for some interviews also. So, what do you think that what are the stuff जो कि हम लोग इन पढ़ाई के दौरान भी अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, बट हम लोग करते नहीं है, या फिर हमें बताया नहीं जाता है कि हमें इस तरह से भी अपना ग्रूमिंग कर लेना चाहिए जब हम पढ़ रहे होते हैं, या जब हम लोग का जब ओरिएंटेशन होता है. That's a very minuscule about all the world, corporate world, which is there outside after passing out your examination. It's a minuscule. तो क्या लगता है कि मतलब क्या प्रिपरेशन होना चाहिए इंटरव्यू के लिए, सिंस यू आर वर्किंग इन आईटीसी राइट नाउ? सो ITC is one of the known company where the CMAs are want to work, and there are very good opportunities in ITC. So what do you problem face, या फिर आपको क्या लगता है कि कैसे होना चाहिए इंटरव्यूज के प्रिपरेशन के लिए while studying also? ऐसा नहीं है कि पास करने के बाद देखेंगे क्या होता है नहीं होता है, नहीं, पहले ही हमने ये बात कुछ करना है कि कैसे इस चीज को कर सकते हैं. ठीक है, तो मोस्टली इस चीज़ के लिए बच्चे पूछते हैं कि हमें ट्रेनिंग लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, और 6 मंथ ट्रेनिंग इज़ इनफ और नॉट। तो मेरा ये मानना है आपको 1 डेढ़ साल का ट्रेनिंग तो पहले लगाना ही चाहिए। एडवांस एक्सेल सीखना चाहिए, हो सके तो एसएपी पे काम करना चाहिए, बिकॉज़ दे विल ड्यूरिंग इंटरव्यू दे विल आस्क दीस थिंग्स आल्सो कि
whether you have good knowledge of Excel or advanced knowledge of Excel, you have a hand on SAP or not. और most importantly communication तो डेवलप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करना ही है स्टडीज के साथ साथ, ये सब चीजें हैं। और दूसरा कैंपस के टाइम पे हम क्या करते हैं कि जब हम पास आउट हो जाते हैं तो हमारा एटलीस्ट 2 मंथ्स के बाद कैंपस होता है, तो इन दी मेन टाइम हम मे बी आउट ऑफ स्टडीज हो जाते हैं, टच हमारा आउट स्टडी से चला जाता है, तो वो 2 महीने को प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए, अपना नोट्स बनाने चाहिए उस टाइम में, जो जो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं उसका एक तैयारी करनी चाहिए इन चीज़ों में। और इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको या तो जीडी देना पड़ता है या फिर आपका मे बी रिटन टेस्ट हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी बेसिकली। तो उस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, जीडी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड सर्कल में जीडी बना के प्रिपेयर कर सकते हो, और इंटरव्यू के लिए जो इंट्रोडक्शन रहता है आपका वो प्रिपेयर कर सकते हो आप। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। और स्टडी रिलेटेड क्या प्रिपरेशन होना चाहिए? लाइक जो हम लोग पढ़ते हैं वो तो बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है, लाइक सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग, लेकिन जब इंटरव्यू फेस करने जाते हैं उस समय तो हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बनाना होता है, बट स्टिल दे आर आस्किंग रिलेटेड टू सम स्टडीज रिलेटेड क्वेश्चन, तो वहाँ पे क्या स्टडीज रिलेटेड मतलब उस वक्त पढ़ाई करना चाहिए? पहले तो Interview आपका के लिए। रिज्यूम के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर आपने कहीं ट्रेनिंग लगा रखी है और रिज्यूम में आप अपना काम लिख रहे हो तो वो डेफिनेटली दे विल आस्क फॉर देम। तो जो रिज्यूम में आप लिख रहे हो आपको 100% आना चाहिए वो चीज़, उसको वो घुमा फिरा के पूछते हैं। क्योंकि दूसरा स्टडी में हम Okay. थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली तो मतलब काम अलग रहता है काफ़ी ज़्यादा, तो थ्योरेटिकली ही आंसर दे पाओगे आप तो इंटरव्यू में, अगर आप फ्रेशर हो। तो मतलब जैसे जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं तो फिर बहुत सारे फॉर्मूलाज और बहुत सारा सेक्शंस वगैरह पढ़ते हैं, बट जब इंटरव्यू में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? मतलब हमें बेसिक्स सिर्फ पढ़ना होता है या फिर कुछ डेफिनेशंस या सिर्फ ऊपर सेक्शंस, या फिर वो सब बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए इंटरव्यूज के लिए? सेक्शन इतना रेलिवेंट नहीं है, बट हाँ बेसिक्स पता रहने चाहिए। मेरे से तो उन्होंने जर्नल एंट्री भी पूछ ली थी जो कि बहुत ही बेसिक है। ओके, सो बेसिक इज इम्पोर्टेंट फॉर इंटरव्यू। अगर आपको मतलब उनका कैसे, अगर वो बेसिक नहीं आता आपको तो वो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे नहीं ना, दे विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक राइट। ओनली। तो मतलब इंटरव्यू में हम लोग को बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहिए पढ़ाई के, बट बेसिक्स पता होना चाहिए कि क्या बेसिक्स है हम लोग जो भी पढ़े उसमें से। राइट राइट। इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब ओके। डायरेक्ट टैक्स लगा लीजिए, जीएसटी लगा लीजिए या फिर अकाउंटिंग लगा लीजिए। सभी मिलाकर मतलब। ओके, अभी जैसे थैंक यू सो इंडियाज आर मच। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, इंडियाज आर लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द अकाउंटिंग फील्ड, तो वो आपको पता रहना चाहिए। ओके, एंड व्हाट अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सिंस वी आर द सीएमए, बट जब हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो दीज थिंग्स आर रियली नॉट ओवरलैप्ड विद अस, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कॉस्टिंग रिलेटेड बहुत सारा नहीं होता है हमारे ऊपर क्वेश्चंस। इस पे क्या कहना है? मतलब ऐसा आपने See, कभी it फेस depends किया है upon या the फिर? job profile. It depends upon job profile. Like companies like Nestle, they hire for costing profile, so they will definitely ask about standard costing and all these costing related standards. But like in ITC, we have a core financial profiles only, so they don't ask about costing. Okay, okay. So So anybody else, ultimately, guys, if it you all want? depends upon profile to profile. Okay. So anybody else, guys, if you want to share about experience on the interviews, any challenges, और क्या फेस करना, क्या मतलब तैयारी करना चाहिए आफ्टर पास आउट या फिर पढ़ाई के टाइम पे, so that they can good in campus? एक्चुअली आई थिंक जब हम इंटरव्यू का प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्ट थिंग जो रॉबिन ने बोला, बेसिक्स तो मस्ट स्ट्रांग है। बिकॉज ना मैंने ये भी देखा है जो डेबिट क्रेडिट के जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये तक भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू सेशन में। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो भूल चुके होते हैं, तो वो चीज के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। फर्स्ट थिंग तो ये हो गया। सेकेंड थिंग्स हमें ना एक्सेल, बिकॉज जब हम पास आउट होने के बाद जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम काम करने आते हैं तो वहाँ पे ना आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी कंपनी मेंटेन करती है सब एसएपी पे मेंटेन होता है, या फिर कोई अदर सॉफ्टवेयर कंपनी यूज कर रही होती है तो उस पर मेंटेन होता है। तो हमारे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर हम उसके हमने ऑलरेडी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। एसएपी एफआईसीओ मॉड्यूल हो गया या फिर अदर एडवांस एक्सेल्स हो गया। बिकॉज जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप कॉस्टिंग में भी आते हो काम करने, तो वहाँ पे एडवांस एक्सेल्स के फॉर्मूला यूज होते हैं और कम्प्लीटली एसएपी पे काम होता है, जो कि बिल्कुल हमारे लिए न्यू होता है। तो हमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस भी करने पड़ते हैं, बट आपने उसकी ट्रेनिंग ऑलरेडी पहले से ली होगी तो आपको कंपनीज पहले शॉर्ट लिस्टेड भी करेगी एंड आपके पास ज़्यादा चांसेस है कि आपको हायर करने का। बिकॉज बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो एसएपी की ट्रेनिंग पहले लेके फिर इंटरव्यू देने जाते हैं।
तो आई थिंक ये एड ऑन होगा आपके प्रोफाइल में अगर आपने एसएपी पहले सीख लिया तो। Okay, so thank you so much for this, Robin and Rohan. Really good. And the next question I would to like to ask to Bachwani, Pankaj Bachwani. So there are in now a current situation, digitalization is a major topic, right? We cannot avoid digitalization. We cannot say that we are accountants. We do not know the technical thing. We are not going to work in regard to technical things. We do not know anything about technicals. So what do you think, how much it is important in now times to get to know about digitalization, that how the finance will going to work in coming future in digitalization, and in fact, how now it's working? Since you are working in Dubai, we are all working in India, and working in Dubai, I guess it's a different genre of work. So how it affect in Dubai work culture about digitalization, and how it's affect the finance work? See, when we talk about digitalization, now the whole finance function is being digitalized. Earlier days, what we used to have, let's say if you are in a role of financial accounting or financial reporting, then you used to prepare manual general entries. Then you used to, in the late 80s or 90s or 2000s, then you used to do these things manually. Then after that, the transformation began and things started to get linked through these ERP softwares that are already there, as Rohan mentioned, SAP, uh, QuickBooks. There are so many, like in India, very popular, that Tally, Sage, Oracle. So these companies are doing a great job when it comes to generating your financial statements through the operational transactions that a company is doing. So now what our role comes into play for these digitalization things is that we have a technical knowledge. We are sound with the rules and principles of cost and management accounting, which includes taxation, and it depends on the student's interests. So we are well versed with all these technical abilities that we have. Now what we need to do is we need to build a bridge between the softwares and the information that we have. So let's say I have the knowledge of cost accounting software, so cost accounting principles, which is CS4, as you can say, if I have the knowledge of cost accounting standard. So now my management, let's say they are trying to implement a software which is SAP cost accounting module. If they are trying to implement, why they need me is to tell them what how the system should react on particular transactions, how the system should give me the output on based on the cost accounting standard that we know, we are the experts of it. So digitalization is basically you are the bridge in between. there's one there's your entity where you are working, and there's your knowledge in between, and the system is here. So you are the bridge in between of the entity and the system. So that's what digitalization comes into play, and you need to really be well versed with all the systems. You need to have a greater command on Microsoft Excel, Microsoft Outlook, PowerPoint, everything. You need to, now since it is all becoming virtual, you need to know how to connect these virtual meetings, how to operate VPN systems, how to operate through remote desktops, which is very critical nowadays because all the companies are starting work from home for all the employees. So you need to know how do we operate our accounting systems through remote desktops, which is really important. That's it. Exactly. I think right now, currently, I'm working in with IT industry. So I have also faces many things like how it is being totally comes into the digitalized format. Whatever the stuff I have used to work in Hutco for the practical training period. So whatever the stuff which are there, even in the paperwork, all these has come to the software format. And Oracle, I think it's very common now. So Oracle, I think everyone is working in Oracle, which is very common, and accountings are done right now in Oracle. With the few steps, we are come to lots of reports. We are just recording the few steps, and we can able to generate a lots of reports with these Oracle system. So I think students have to be updated about the software, and they cannot just say that we do not need to know about the technicals. So it's very Yes, and important that for all of us. Yeah.
Correct. And a software is just an application. How you command it, it will work. So do not be afraid of these SAP or Oracle. These are just ERPs. Similarly, what you handle apps on your mobile phones, you can consider them in that way. They are a bit more, like they have a bit more functions, but similar, they work on a similar methodology. Now you are the coder of that app. Consider yourself as the financial coder. Whatever you tell your IT team or your managers that I want SAP to be in that way, I want this function to work in that way so that it's more accurate, so that your financial statement is presenting the true and fair picture. Whatever entries it is doing at the back end, you need to give your input with your knowledge. So this is when your Yeah. expertise comes into play, and in order to have that sort of expertise, you need to have the basics very clear. You need to be very particular about that subject so that you are able to advise them. This is what your role in future would be, but in the beginning you need to learn how it works. So so always Correct. go for the learnings. When you learn how the cycle moves for finance, then you are in a much better position Exactly. to Very advise. So true. after the Uh, degree, just don't just think that you will go and advise. You can't, because you don't know things. You've just read it in the book. You can't build the bridge until you understand the practical world. So just go for learning it throughout, not just one particular field of cost and management accounting. Finance, including taxation, AR, AP, everything you need to understand. Then, because your financial statements includes they include everything, whether it is cost accounting principles or methods, or cost that have been incurred, taxation, your accounts receivables, your payables, your asset management, your equities, everything it includes. So you need to have a broader perspective, and then you will be able to have in a better picture to advise your management. yeah. So I think while we are study, I think it must be kept in our mind that we have to deal with the technicals, we have to deal with the softwares, we have to deal with the digitalization. It must now come into the mind of the students. अभी ये दिमाग में जब वो पढ़ रहे होते हैं, आई थिंक ये तभी दिमाग में रखना होगा हमें कि ये हमें आगे जाके फेस करना होगा और हमें ये सीखना होगा. It not like we cannot be rigid in all these things. Correct. So when you are learning it, So you yeah. that's why it is important to link everything with what is going on in the world. Let's say you're learning financial ratios, you're learning these simple current assets ratios, liquidity ratios, and insolvency ratios. So you have financial statements available for the companies around the world. You can go on Google, you can go on Money Control, you can analyze, you can see whose financial ratio is better. So you have a better understanding. So now it depends on person's interest. If you really want to grow in this field, you must do these things. You must understand how how the function works. Otherwise there's no point. You will earn a decent salary throughout all your life. I wish like you get the best, but from my point of view, if you're not growing yourself in order to become, like in 10-15 years, if you target yourself to be a finance director or something that a very you know uh, executive level, if you target that executive level, you need to think like an executive, and you need to really work for it. Okay. So guys, there is a one question. Let's take one question because few many questions have been came. So there is one question about how the future of data analysis. I have seen what you guys can also check in the private chat. How the scope of future data analysis and the role of CMA, future data analysis. So what to say about this? Do anyone have any experience about data analysis? Do you want me to speak about it? Huh? If you have experience, please say. Yeah, so now what It's happens, a question. there are two It's a question main from functions of Sonu finance. Jason. So there are two main Yeah. functions of finance that we work in. One is it that you work to prepare financial statements. That is your Mm-hmm. accurate financial statements. Now the second Mm-hmm. part that comes after preparing the financial statements, there are business analysts. They analyze your financial uh, statements based on the earnings of quarter or monthly or whatever their business requires. Now this is not something that is statutory. This is an internal department created by a company to analyze all the ups and downs and variations of different financial
objects of a company, so that those business analysts can advise based on their presumptions. That let's take an example of let's say a company is growing sales at a rate of 20% each year. Everyone is so happy, the company is also so happy. Now the business analyst notices that the company's expenses are also being increased at a level of 40 to 45% every year, which is very alarming. So the business analyst will gather the relevant data for the managers, for all the stakeholders, and business analyst will tell his, from his expertise, he will tell that this is what you can do to avoid more expenses, and this is how you can reduce the expenses. Now this job is designed for us also, but again, you need to know how these financials are being made to reach to that job. How, so you need to know how. However, if you again understand the basic concepts, and you kind of master yourself in analyzing financial statements and budgeting, these sort of things, then it's this job profile is also open for CMAs. But you need to be really good with data analytics, which comes with your Excel skills, your analyzing skills. It takes time to develop those. So if you really want to go in that field, that's also a field that comes after your financial statement analysis. So if you really want to go in that field, work for it, improve your Excel, improve your data management skills, data mining skills, data analyzing skills. There are languages that extract data from systems, SQL, Python. Learn these languages, you will be in a better position to crack that job. Yeah, in the upcoming situations, I think these software is also going to come about Python and all. Okay, so thank you so much, Bachwani. You have shared lots of things about in this topic. So next, I'll like to go with Rohan. So Rohan, uh, there are different area of finance, right? There are banking, insurance, manufacturing. There is a service industry, and there is a IT industry. There is a hospitality industry. There are different genre of industry, जो कि मुझे realize हुआ था बहुत बाद में, जब after I pass out examination, then I got to realize that these all are the area where the students are actually CMAs are working, right? There are some financial industries also in the stock markets and all, which deal with that. So like JP Morgan, the students CMAs are working there, or there is a scope to work. So what do you think, how the scope can be analyzed for the CMAs, that how they can analyze that where they should move on after they pass out of the examination? एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग ना हर एक पर्सन का इंटरेस्ट वेरी करता है, बिकॉज जैसे मेरा पर्सनल इंटरेस्ट कॉस्टिंग में ज़्यादा था, तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया आफ्टर क्वालिफाई। एंड मैंने सर्च भी Okay. किया, और जो भी मैं जॉब अपॉर्चुनिटी आती थी मैं अप्लाई भी करता था कॉस्टिंग प्रोफाइल के लिए। मुझे अदर Okay. प्रोफाइल लाइक जीएसटी, इनकम टैक्स, इन सब पे भी वर्किंग करने का अपॉर्चुनिटी मिला, बट मेरा फोकस था कि नहीं, मुझे कॉस्टिंग में ही काम करना है। तो फर्स्टली एज ए Okay. स्टूडेंट हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें इंटरेस्ट किस फील्ड में सबसे ज्यादा है। बिकॉज अगर आप कैंपस की अगर बात करते हो तो कैंपस में आपको पहले प्रोफाइल फिक्स नहीं होता है बहुत सारी कंपनीज में, बिकॉज आपको पहले मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए हायर करते हैं, देन वो आपको अपने अकॉर्डिंग प्रोफाइल देते हैं। बट आफ्टर कैंपस अगर आपकी कहीं कैंपस नहीं होती है, तो फर्स्टली आप एक कुछ टाइम लो खुद के लिए, एंड आप डिसाइड करो कि आपको किस फील्ड में आपके इंटरेस्ट ज्यादा है। पैसे हर एक फील्ड में, आप अर्निंग हर एक फील्ड में कर सकते हो, आप टॉप पोजीशन भी हर एक फील्ड की वैसे आप पहुंच सकते हो। कॉस्टिंग में भी लोग टॉप पोजीशन पे हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट में भी वर्किंग है उनके भी काफी अच्छे अर्निंग है, एंड वो भी काफी अच्छे पोजीशन पे है। तो फर्स्टली एज ए स्टूडेंट हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट किस फील्ड में सबसे ज्यादा है, एंड देन And I think ये पढ़ाई के टाइम पे एनालाइज करना बहुत बेस्ट टाइम होता है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट हाँ, इट, कि कब पढ़ाई के एनालाइज टाइम पे करना चाहिए? बेस्ट होता है मेरे अकॉर्डिंग। पढ़ाई के टाइम होना चाहिए, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग ना आप उस हाँ. सब्जेक्ट के ऊपर आप ज्यादा फोकस कर सकते हो, एंड अदर सब्जेक्ट के Exactly. ऊपर आप एज ए एग्जाम ओरिएंटेड आप फोकस करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। Exactly, हाँ. बिकॉज हमारे टाइम में ऐसा कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो हमें पहले से नहीं मालूम था, हमने सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस इक्वली किया। बट आफ्टर दैट रियलाइज हुआ कि हम हर एक फील्ड में हम काम नहीं कर सकते, हम हर एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन सकते। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस फील्ड में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो, एंड अकॉर्डिंग टू दिस आप वो फील्ड ऑप्ट करो, एंड वहाँ आप अपनी वर्किंग स्टार्ट करो।
आई थिंक एक और चीज़ यहाँ पे है कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं और हम लोग को रियलाइज होता है कि हम कॉस्ट में अच्छे हैं या हम अकाउंट्स में अच्छे हैं या टैक्स में अच्छे हैं, तो आई थिंक वी हैव टू डू सम रिसर्च ऑल्सो कि किस किस इस सीएमए जो है वो किस किस फील्ड में, इस टैक्सेशन में किस किस फील्ड में काम कर रहे हैं, कौन सा बेटर अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे वो आफ्टर पास आउट जा सकते हैं या फिर उसका क्या स्कोप है। तो पढ़ाई के समय ये रिसर्च करना बहुत जरूरी है कि वो क्या कर सकते हैं बेटर आफ्टर पासिंग आउट एग्जामिनेशन, रैदर देन कि जब पास हो जाए तब ये चीज रियलाइज हो और तब तक बहुत कुछ निकल जाता है ऑलरेडी हाथ से। उस वक्त ये होता है कि जो मिल जाए वही सही है, यही आता है ये स्टूडेंट्स के दिमाग में उसके बाद। ये भी होता है, बट ऐसे अगर बीइंग ए प्रोफेशनल, मैंने जैसे मैं ओएनजीसी विदेश में मैं ट्रेनी था, तो वहाँ पे जो ओएनजीसी विदेश की जो एनुअल रिपोर्ट होती थी, जो बैलेंस शीट बनती थी, सारे कॉस्ट अकाउंटेंट ही बनाते थे। तो ऐसा नहीं है कि सेम में, मतलब हर एक फील्ड में है और वर्किंग है, काफी अच्छे अच्छे पोजीशन पे है, टॉप मोस्ट पोजीशन सेमेज होल्ड कर रहे हैं आज के टाइम में। तो ये मतलब बट स्टूडेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। सबसे बेस्ट यही है कि आप खुद से डिसाइड करो। एंड आई थिंक ये पढ़ाई का टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है ये डिसाइड सबसे बेस्ट करने का टाइम है कि वो पढ़ाई किस का। एग्जैक्टली कि किस इंडस्ट्री में उन्हें ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि एक टाइम के बाद अगर आप कोई काम कर रहे हो उसमें अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है उतना, तो एक टाइम के बाद फिर वो फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन हो जाता है कि क्या कर रहे हैं यार, पता नहीं चल रहा है कर क्या रहे हैं, बस सैलरी आ रहा है, बस यही है। मैंने कई सीएमएस के जुबान से ये बात सुनी है, नहीं, कई डेफिनेटली ऐसा सीएमएस है, के जुबान से। ऐसा है भी। ऐसा है भी क्योंकि पास आउट जस्ट फिर ये होता है ना कि बस कहीं जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाता है, 6 महीने हम लोग काम करते हैं, उसके बाद रियलाइज होता है यार कर क्या रहे हैं पता नहीं, बस सैलरी आ रही है, बस इतना ही है, महीने के अंत में खुश हो जा रहे हैं, बट फिर वो 10-15 दिन काम करके फिर इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो आई थिंक ये पढ़ाई का टाइम फॉर द स्टूडेंट्स इज द बेस्ट टाइम, जब वो खुद को ये रियलाइज करे कि वो उसका इंटरेस्ट एरिया कहाँ पे है और वो उसके ऊपर फोकस करे। Mithun, I would like to add upon. हाँ Even, प्लीज प्लीज। yeah, sir, Steve Jobs, ex-CEO of Apple, he has also said the same thing, that you don't know for what you are meant for. So just keep on changing your job, and the day you will find satisfaction, means that job is meant for you. तो जब आप पढ़ते हैं, अगर आप उस वक्त से एनालाइज करना शुरू कर देंगे कि कौन से फील्ड में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपके लिए एक बहुत अर्ली स्टेज में एडवांटेज हो जाएगा। अदरवाइज आप जॉब या प्रैक्टिस जो भी आपने फील्ड चुनी है उसमें जाने के बाद अपना कोर फील्ड आप डेवलप करेंगे, तो बाद में आपको ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। आप अगर आप इनिशियली ही इस रिसर्च को स्टार्ट रखेंगे तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प, बिकॉज इनिशियली जब कोई भी स्टूडेंट कोई प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करता तो शायद उसको उतना नहीं पता लग पाता कि उसको किस तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा। मे इट बी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉस्टिंग और अकाउंटिंग, व्हाटएवर इट इज। बट अगर आप अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करना शुरू से ही स्टार्ट कर देंगे तो डेफिनेटली ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन मैंने खुद भी ऐसा ही एक्सपीरियंस किया है अपने लिए, तो इसीलिए मैं ये बता पा रहा हूँ। बिकॉज मैं इनिशियली जब ज्वाइन किया था तो मैं पहले चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने गया था। आई वॉज परस्यूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड आई वॉज इन सीए फाइनल। एट दैट टाइम मुझे कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया था, बिकॉज सीए कोर्स में सीए फाइनल में कॉस्टिंग एक बहुत ही टफ पेपर माना जाता है उसको। तो मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। देन आई डिसाइडेड कि इफ आई एम फाइंडिंग इंटरेस्ट इन अ सब्जेक्ट, इन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, देन व्हाई नॉट टू ट्राई अ कोर्स व्हिच इज specifically designed for costing purpose only. So then I decided and joined costing CA ICW, and even I secured very good rank in ICW. तो इसलिए अपना फील्ड अगर हमको पहले से मालूम लग जाए तो that उसका हमको काफ़ी एडवांटेज मिलता है। That will help all the students if they'll be able to find their interest at an early stage. इसमें एक मैं और ऐड ऑन करना चाहता हूँ। एक मेरे पास केस आया था, लाइव केस था एक्चुअली। एक स्टूडेंट था, मतलब वो सीएमए क्वालिफाइड करने के बाद आफ्टर दैट उसका टाटा प्रोजेक्ट्स में उसका कैंपस हुआ था। एंड टाटा प्रोजेक्ट्स में जो उसको प्रोफाइल मिली थी ना, वो कॉस्टिंग की प्रोफाइल थी ना वो फाइनेंस की प्रोफाइल थी। उसको एक ईयर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के बाद उसको एक अदर प्रोफाइल दिया गया, मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा उस प्रोफाइल का। बट आफ्टर डेट ना उसके पास ना कॉस्टिंग का एक्सपीरियंस हुआ, ना फाइनेंस का, ना टैक्सेशन का, वो किसी फील्ड का उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था। तो देन जब उसका 1.5 ईयर कंप्लीट हो चुका है तो फिर से उसको शुरू से स्टार्ट करना होगा। तो एट द टाइम जब उसका सिलेक्शन हुआ था उसको उसी टाइम डिसाइड करना चाहिए था क्या वो पोस्ट उसके लिए सही है या नहीं। बिकॉज जब हम कैंपस में हमें सिलेक्ट होता है ना तो सबको यही लगता है यार बस पोजीशन मिल गया, पैसा मिल गया, मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए।
तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज बाद में ऐसा हो सकता है कि आपकी ग्रोथ ना हो उस प्रोफाइल में। तो हमें प्रोफाइल बहुत केयरफुली सिलेक्ट करना चाहिए। करेक्ट। बिकॉज मैं भी Yeah. इसमें अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मेरा आई वर्क इन कोल इंडिया लिमिटेड, इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी एक सेपरेट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल क्या करती है, कुछ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम कोल इंडिया वो डेपुटेशन पे दिल्ली में मिनिस्ट्री में बुला लेती है कुछ एग्जीक्यूटिव को, और वहाँ पर डेफिनेटली जो भी कोई एग्जीक्यूटिव जाता है उसकी पावर तो काफ़ी बढ़ जाती है, बिकॉज वो एक जूनियर लेवल पे भी जाता है तो भी वो कंपनी के डायरेक्टर एंड सीएमडी से बात करता है। बट उसका जो एक्सपोजर होता है अपनी खुद की फील्ड में, लाइक इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और कॉस्टिंग, वो उसका काफ़ी पीछे रह जाता है। तो शुरुआत में हो सकता है बहुत लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है बिकॉज दे इंजॉय द पावर, बट दे लैग बिहाइंड इन देयर टेक्निकल स्किल्स। तो वो आगे जाके जब वो वापस आते हैं वहाँ से डेपुटेशन खत्म करके इंडस्ट्री में, तो थोड़ा उनको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो इनिशियली हम लोग को थोड़ा सा फोकस रहना पड़ेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हमको लॉन्ग टर्म एक जॉब प्रोस्पेक्ट से ही सोचना है तो हमको पहले अपनी टेक्निकल स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करके चलना होगा, राइट। राइट। Yeah, you're correct. So, just a second, guys. Let me add Anshika. Okay. So next, I want to go with you only, Pankaj. So thank you for this answer from Rohan and Pankaj. For next that I want to discuss for is that of additional degree. Once we pass out with the CMAs, which I face also, एक बार वो पास होने के बाद we are get to know about okay, this is not going to work. इतना काफी नहीं है, we need to get more degrees. Then we are keep on searching about case SEMA, some going started working for CMA, US, CA, CS, some other stuff also. So Pankaj, since you are holding so many, you have already did so many of the courses like CA, you are CA, CMA, CS, you are done, I think something from IIM and IIT also you are having some courses, right? So how do you think it is important, and how do you think it will going to help for the CMS to develop their career? How much it's need? It's how much it's needed actually. Okay, thank you for asking such a wonderful question from me. See, as far as additional qualifications are concerned, मैं पहले अपने experience से share करता हूँ तो better होगा, मैं relate कर पाऊँगा। First of all, tell of your whatever the degrees you have, whatever professionals you have in IIT and IIM especially. I think it will be very good for the audience get to know about this. Let me start. Basically, I'm a fellow member of all the three premier institutes. Namely, I'm a fellow chartered accountant, fellow cost accountant, fellow company secretary, and I have done management development program from IIM Lucknow, and recently I have qualified executive MBA from IIT Dhanbad. So apart from BCom and MCom, so and currently I'm pursuing LLB. So these are the things which are there in my account. As far as these additional qualifications are concerned, that why I have done this and is it really useful or relevant for the students or not. So earlier, when, just a minute before, I was telling to Rohan that I was pursuing CA final and then I joined ICW, right? So I joined ICW when I was in CA final, but now it's ICAI only. So I completed my cost accountancy in a period of 1.5 years only since I joined, and secured 32 and 28th rank in internal final board. तो मेरा इंटरेस्ट ICW कॉस्टिंग में इतना ज़्यादा था कि मैं उसको इतनी जल्दी कर पाया, और उसी की वजह से आई गॉट अ जॉब इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न विच इज कोल इंडिया लिमिटेड, रेप्यूटेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बट जब मैं कोल इंडिया मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद कुछ टाइम तक मैंने कॉस्ट एंड बाइट सेक्शन, हम लोग के बोलते हैं उस सेक्शन को, जो विच इज रिलेटेड टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, वो ज्वाइन करने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, इट वाज रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस। सून आई रियलाइज कि मुझको थोड़ा वर्सेटाइल एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो जो मेरा उधर CA फाइनल चल रहा था, मैंने उसको कंप्लीट किया, देन आई joined finance discipline also, and in the meanwhile I completed my company secretary course also. तो बाद में जाके मैंने सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट भी ज्वाइन किया, कंपनी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट। अभी तो CFO की पोस्ट भी हो गई है, कंपनी सेक्रेटरी को की मैनेजरियल पर्सन में काउंट किया जाता है। तो मैंने ये एनालाइज किया ओवरऑल कि मेरे पास एडिशनल क्वालिफिकेशन होने से ऐसा, इट्स नॉट मैंडेटरी, राइट? टेलिंग टू ऑल द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टूडेंट्स दैट डोंट लूज होप, एंड इट्स नॉट अ कंपल्सरी दैट यू हैव
you should have all the qualification, but I'm sharing my experience first, then I will come back to the question. तो बिकॉज मेरे पास ये तीनों फील्ड के एक्सपीरियंसेस थे फ्रॉम क्वालिफिकेशन से, जिसके बेसिस पर मेरे को जिस भी फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए था तो इजीली मैनेजमेंट मेरे को उस डिपार्टमेंट में पोस्ट कर देता था, और उससे क्या हुआ, मेरा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी ब्रॉड हो गया। और उस एक्सपीरियंस के बाद अभी क्या हुआ कि मैं अभी मैनेजरियल लेवल पे हूँ, इट्स बीन मोर देन 10 years सिंस आई एम वर्किंग इन कोल इंडिया लिमिटेड। तो क्योंकि मुझे काफ़ी सारी फाइनेंस की फील्ड का टैक्सेशन हो या अकाउंटिंग हो या कॉस्ट अकाउंटिंग हो या फिर सेक्रेटरियल ऑडिट हो, इसका एक्सपोजर मिल पाया बिकॉज ऑफ माय एडिशनल क्वालिफिकेशन। तो अभी मैं मैनेजरियल पोस्ट पे काफ़ी कंफर्टेबल फील करता हूँ, और जो बंदे मेरे अंदर काम करते हैं तो उनको अच्छे से गाइड कर पाता हूँ। तो फर्स्ट तो बेनिफिट मेरे को डायरेक्टली ये मिला। बट फॉर ऑल द स्टूडेंट आई वुड लाइक टू से कि अभी जैसे कोविड चल रहा है, ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस लाइफ में आती रहेंगी और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर हम लोग अपने को बेटर वे में डेवलप कर पाएंगे, जो कि इनिशियली फर्स्ट क्वेश्चन अंशिका ने जो पॉइंट आउट किया था उसी पॉइंट पे मैं लौट के आ रहा हूँ कि इट्स नॉट अ कंपल्सरी दैट यू शुड हैव एडिशनल क्वालिफिकेशन, बट द मोर यू विल स्टडी, द मोर यू विल गेट नॉलेज, एंड द मोर यू विल गेट नॉलेज यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू फाइट विद योर कॉम्पिटिटर्स, राइट। तो मुझको ऐसा लगता है कि अगर मैं पढ़ता हूँ तो एक फॉर्मल वे में पढ़ने में हमारे सामने एक टारगेट रहता है। जैसे बचवानी ने भी बोला कि आप अपने ऐप में एक डेट एंड टाइम सेट करके रखिए, और वो डेट एंड टाइम सेट करके चलने से ही आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो होता क्या है, हम प्रैक्टिकल लाइफ में जब हैंडल कर रहे होते हैं सिचुएशन, तो कभी कभी हम वो डेट एंड टाइम सेट करना भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम कोई कोर्स ज्वाइन करके रखते हैं तो उसमें रेगुलर इंटरवल पर एग्जाम्स या टेस्ट जो भी करिकुलम होता है कोर्स का वो रहता है, तो इसलिए हम अपने को अपडेट करना भूलते नहीं है। वो कोर्स की डेडलाइन हमको याद दिलाती रहती है दैट वी नीड टू अपग्रेड आवरसेल्फ। तो इसलिए हम फोर्सफुली या चाहे इंटरेस्ट से अपने को अपडेट करते जाते हैं, और ये अपग्रेड हम जैसे जैसे होंगे वैसे हमारे करियर में हमको काफ़ी हेल्प करेंगे। वेरएज जो लोग प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं उनके लिए एडिशनल क्वालिफिकेशन, ये जो मैंने क्वालिफिकेशन की शायद ये रेलिवेंट नहीं रहे, दूसरे सर्टिफिकेशन कोर्स रेलिवेंट रहे। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका टारगेट क्या है, बट जो भी टारगेट है आपकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन डिग्री के फॉर्म में हो या आपकी नॉलेज के फॉर्म में हो, दैट विल डेफिनेटली हेल्प। So keep growing yourself, keep upgrading yourself, and if you think to get better exposure you need additional qualification, then you can definitely go ahead with it, but it's not compulsory. Definitely मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, मैंने अपनी कंपनी में एनालाइज किया है, those who are having better exposure get better chance to grow. So as because of my qualification I am getting better opportunity to get better exposure, तो आई थिंक मेरे को थोड़ा बेटर चांस मिलेगा ग्रो होने के लिए। तो इस सेंस में मैं बोलूँगा कि एडिशनल क्वालिफिकेशन या एडिशनल नॉलेज दोनों को ही मैं एक पार रखूंगा वंस यू हैव क्वालिफाइड सीएमए, बिकॉज सीएमए अपने आप एक सफिशिएंट क्वालिफिकेशन है। अगर आप सेल्फ कमिटेड हो कि आप बिना क्वालिफिकेशन लिए भी अपने को अपग्रेड करते रहेंगे, देन डेफिनेटली देयर इज नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, शायद आपके ऊपर एक टारगेट सेट नहीं होगा, तो शायद आप भी थोड़े से एक स्टेप बैक ले लें और आप शायद उतना अपने आप को अपग्रेड ना कर पाएं। तो एक क्वालिफिकेशन अगर आपके साथ रहेगी तो उसको टारगेट को अचीव करने के लिए आप अपने आप को अपग्रेड कर पाएं। तो दिस इज द होल सिनेरियो व्हिच आई वुड लाइक टू से। ओके, सो आई थिंक अपने आप को जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, कीप ऑन अपग्रेडिंग योरसेल्फ, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम लोग किसी एक कोर्स में अगर एनरोल करवा लेते हैं तो बाय फोर्सफुली यू कैन से और बाय विलफुली यू कैन से यू हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग। वो एक जरिया बन जाएगा कि आप अपने आप को अपडेट करते रहेंगे, राइट। और और एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके पास नॉलेज गेन हो जाएगा, अगर डिग्री आएगी, तो वो आपके काम में आपको डेवलप करने में ज़रूर हेल्प करता है, आई थिंक, राइट। बिल्कुल एकदम आपने राइटली ये बात कही, बिकॉज अल्टीमेटली की तो नॉलेज ही है, एक बेसिक क्वालिफिकेशन जरूरी है जो आपने सीएमए की डिग्री लेके अचीव कर ली है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ यहाँ जितनी भी हमारी ऑडियंस है वो सीएमए की डिग्री को अचीव करना चाहते हैं या कर चुके हैं, तो वो बेसिक मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। यू आर अ कॉस्ट अकाउंटेंट, उसके बाद ये नॉलेज इज नॉलेज आप कैसे एक्वायर करते हैं, बिकॉज हर इंसान का एक अलग वे होता है जो मैंने अभी डिस्कस किया। तो अल्टीमेटली दैट विल हेल्प यू, और वही आगे इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में आपको सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। हाँ, और इसका मतलब ये चीज़ दिमाग से बहुत ज़रूरी है कि अब निकाल दिया जाए स्टूडेंट्स के दिमाग में, जो कि रहता है कि ख़त्म हो गया पढ़ाई तो अब उसके बाद कुछ नहीं करना है। तो कोई भी ज़रिया हो अपने आप को अपग्रेड करने का,
वो किसी कोर्स के जरिए हो या अपने 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 आप को खुद आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस टू कीप ऑन अपडेटिंग योरसेल्फ। आई थिंक आई थिंक पिछले ये 1 घंटे से हम लोग जितना भी डिस्कशन किया उसका सेंटर हाँ पॉइंट यही है कि हमको अपने को अपग्रेड हम्म, करना है और क्वालिफिकेशन लेने के बाद तो ज्यादा अपग्रेड करना है। बिकॉज जब मैं एक हाँ स्टूडेंट ज़्यादा था जब मैं एक स्टूडेंट था उस वक्त अगर मैं कुछ एज एन आर्टिकलशिप में कुछ गलती करता था तो मेरे से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता था कि मेरे को एक्सपर्ट नॉलेज होगी। बट वंस आई हम्म, क्वालिफाइड माई क्वालिफिकेशन CMA और एनी अदर क्वालिफिकेशन, तो अभी कोई मेरे पास आता है, वेदर कोई क्लाइंट आता है या कोई मेरा फ्रेंड भी आता है या मेरे कोई कलीग्स भी आते हैं, तो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनको एक सॉलिड आंसर दूं जिसमें कोई स्कोप ऑफ कंफ्यूजन ना रहे। तो उसके बाद हमारे करेक्ट शोल्डर पर एक ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि हमको अपने को अपडेट रखना पड़ेगा। बिकॉज अगर उसके बाद हम ये बोलेंगे कि अच्छा रुको, लेट मी सी, लेट मी चेक, मैं देखता हूँ या शायद ये हो सकता है, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डालेगा। उसके बाद तो इट्स मैंडेटरी। उससे क्या होता है प्रोफेशन पे, पता है सबसे पहला क्वेश्चन उठता है प्रोफेशन पे, जो जो अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। कुछ एक होता है तो ये एक किसी पर्टिकुलर इंसान पे नहीं, आई थिंक वो डिग्री पे क्वेश्चन उठ जाता है कि ये क्या डिग्री लेके बैठे हो जिसका यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस या तुम्हारे पास यू आर डूइंग दिस। ये बहुत होता है। करेक्ट करेक्ट। राइट या तो इसके लिए सो तो आई थिंक हम सभी लोगों को अपील करना चाहिए, सारे ऑडियंस को, कि वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखें। बिकॉज अगर आप कल को इस अपने इंस्टीट्यूट से जुड़ते हैं तो आप लोगों के शोल्डर पे भी काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने इंस्टीट्यूट की इमेज को बनाए रखने की और उसको आगे लेके जाने की। तो कीप अपग्रेडिंग करेक्ट। योरसेल्फ इन एनी वे विच सूट्स योर पर्सनैलिटी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि करते रहें, और ये एक दिमाग में होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ सवाल उठता है तो ये उस डिग्री पे उठेगा, इस प्रोफेशन पे उठेगा, इंस्टीट्यूट पे उठेगा कि इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स लोग कैसे हैं, आफ्टर पास आउट योर एग्जामिनेशंस आल्सो दे आर नॉट डूइंग वेल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग दिमाग में रखें। सो थैंक यू सो मच पंकज फॉर शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस। सो लास्टली, इफ एनीबडी, इट्स ओपन टू ऑल, कोई एक ऐसा कुछ प्रॉब्लम जो पास आउट होने के बाद इफ यू गाइस हैव फेस, जो थिंक यू इफ यू थिंक कि हाँ ये लोगों को पहले ही हम बता दे तो शायद उनके लिए अच्छा होगा, जो वो नहीं करे वो गलती, इफ एनी प्रॉब्लम, मे बी यू और मे बी योर फ्रेंड, मे बी योर कलीग, आपने देखा हो या आपने एक्सपीरियंस किया हो। इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सभी लोगों के पास आई एम श्योर बहुत से एक्सपीरियंसेस होंगे और सभी लोग ऐड करेंगे। अ, हम्म अभी इट्स बीन मोर देन 10 इयर्स, जब मैं स्टूडेंट था, दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था IGW, तब मैंने एक्सपीरियंस किया कि स्टूडेंट इतने ज़्यादा लास्ट टाइम पर एंथुसियास्टिक हो जाते हैं अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए कि वो सोना खाना सब कुछ छोड़ देते हैं। बट अगर हम जो बेसिक अपनी नीड्स हैं उस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो स्लो पड़ जाएगी और लास्ट मोमेंट पे हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने रेस्ट का ध्यान रखें। बिकॉज एक दिन में पढ़ाई करने से आप CMA नहीं बने, यू विल हैव टू स्टडी थ्रू एंड थ्रू, राइट। तो इसलिए लास्ट टाइम पैनिक क्रिएट नहीं करें और अपने हेल्थ का ध्यान रखें, सो दैट यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर इन योर एग्जाम। आई विश कि अदर्स भी सब लोग कुछ एड ऑन करें, सबके पास बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंसेस हैं। Yeah, let me just add on. Yeah, time management is really important. You guys need to understand, आपको अपने 24 घंटे दिन के एनालाइज करने हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। चाहे वो एक किसी कंपनी का CEO हो, चाहे कोई बिलियनर हो, सबके पास 24 ही घंटे हैं। किसी के पास 36 नहीं है, किसी के पास 22 नहीं है। You need to analyze where you're investing your time. If you're focusing like too much of news feed scrolling on Facebook and Instagram, or you're watching Netflix movies, तो आपको एनालाइज करना है कि ये आप दिस इज नॉट व्हाट विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। शॉर्ट टर्म में अगर ये काफ़ी अच्छा लगता है शॉर्ट टर्म में, कि आपको कंफर्ट मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, टाइम अच्छा स्पेंड हो रहा है, बट लॉन्ग टर्म अगर आप अपना विजन रखते हैं कि मुझे लाइफ में कुछ बढ़ना है, आगे कुछ करना है, तो आपको ये अवॉइड करना होगा। और मैं नहीं कहता कि बंद ही कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी बॉडीज भी फंक्शन करती हैं एकदम मशीन्स की तरह। यू नीड टू रिफ्रेश योर माइंड टू गेट मोर एक्सेस, टू बी मोर प्रोडक्टिव, टू बी मोर एफिशिएंट। तो आप अपने आप को रिफ्रेश करते रहें, और लेकिन ध्यान रखें कि टाइम ज़्यादा एक्सीड ना हो रहा हो। अगर आप 2-3-4 घंटा कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, देन यू आर अलाउड टू हैव 15 मिनट्स 30 मिनट्स ब्रेक, देन यू कैरी ऑन विद योर प्रोडक्टिवनेस अगेन एंड गेट बैक टू योर वर्क। सो मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। लेट मी नो इफ यू ऑल कैन सी माई स्क्रीन। Are you guys able to see
what I made this presentation few 1 or दिख नहीं 2 year back. Are you able to see It's some not. presentation? It's not visible. No. not really. StreamYard is sharing a window. It is showing it is sharing, but I'm not sure why it's not sharing. Anything now? Okay, so let me just speak what this presentation has. Now अब आप लोग रियल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो आपकी पढ़ाई तो एक तरफ है, अब जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़ाई से एकदम अलग है, वेरी कॉमन है, बट आपको ये समझना होगा कि ये करना ही पड़ेगा. मैंने इसको जॉट डाउन किया है 6 चीज़ों में, 5 चीज़ों में. फर्स्ट इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स, सेकंड इज योर presentation skills, third is your computer skills, fourth is your public speaking skills, and fifth is your real world understanding. Now मैं एक एक के बारे में मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी छोटी सी, जब मैंने एक सेशन लिया था स्टूडेंट्स के साथ जहाँ मैं पहले इंस्टीट्यूट में पढ़ता था वहाँ पर. तो now how you can improve all these skills, just write down or see very quick 5 small sentences. First is your communication skills. Find a partner and talk every day 30 minutes on relevant topics regarding studies or anything. This will make you improve your communication skills. So your first is, how do you improve your communication skills, is you find a partner and you both doing CMA, so you both talk whatever language you want to have command on, whatever kind of discussion you want to have, just talk about it for 30 minutes. Believe me, it looks very easy for now, but every day 30 minutes you will see the change after 1 or 2 months, that how far you've improved your communication skills. Now you come to your Okay. presentation skills. So whenever you're trying to, understanding any law, any subject, any questionnaire you're trying to study, so try to make a pictorial presentation of that, like flow charts, or maybe highlighters, or be better in a presentive way. When you see something, let's say if it's written in a paragraph, so you convert that paragraph into bullet points, like you be more presentable, so that way you will learn how to present complex stuff into easy way, because that's what you want, that's what the management want you to do. So this is what you need to do. And the third thing that I would say is your computer skills, for which you can do 15 Yeah. minutes every day typing lessons. Typing is really important because everything is done on system, so you need to be really fast with the computers. So you need to learn typing, you need to learn Excel and Microsoft basic functions. I'm telling you, not the advanced ones, just go with the basics. Yeah. So fourth skill, Okay. that is your public speaking. I'll just wrap up in 2 minutes and I have to leave for a meeting at 3. Okay. So fourth skill is your public speaking. So like what I'm doing right now, even I need improvement in my public speaking. So just find 4 or 5 listeners for you who can listen to you, and then repeat with them. Then they can be the public speaker and you can listen. So just find 4 or 5 public listeners. You need to present Yeah. whatever you want. Up to you. You can teach them anything. You can speak about anything, any debate. It will improve your anxiety. It will improve your communications, the way you speak. I think public speaking is one of the very important, because जब orientation के time में हमें stage पे खड़ा होके कुछ बोलने के लिए बोला जाता था, I don't know if you guys have faced this or not. So students totally resist. They just don't want to go to stage and speak even a word, even about themselves. वो Correct. बोलना ही नहीं चाहते थे और बोल भी नहीं पाते थे stage में Correct. जाके. That's So why it's it's very very, important कि you keep on dealing yeah, with you this. need to remove that hesitation inside you. You are no one's gonna judge you. अगर मैं भी अभी कितने sentences हाँ. मैंने गलत बोले होंगे या क्या, कोई भी आपको जज नहीं करेगा. ऐसा मत सोचो कि मैंने गलत बोल दिया तो इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड. ऐसा नहीं है. गलती सबसे होती है. आज मुझसे भी गलती होती है, कोई और भी गलती कर सकता है. बट यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट इज रॉन्ग इन यू एंड करेक्ट इट. ट्राई टू बी better each time when you speak. And the fifth, Yeah. which is the Right. last thing, is रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग. नाउ जो भी आप पढ़ रहे हो उसे आप रियल वर्ल्ड से लिंक करने की कोशिश करो. अगर आप हर वक्त उसे लिंक करने की कोशिश करोगे रियल वर्ल्ड से, देन you will have a better understanding of things. For example, you make the financial statements, you prepare the all the financial data regarding taxes or anything. Just try to link it. What is the impact on the balance sheet if a company sells a product, if a company writes off
an asset, what is the impact on the profit and loss account of the company or the balance sheet? So you need to understand what happens in the real world if anything occurs in your financial world. So when you try to link these things, you have a broader understanding and better understanding of the topics that you're studying. It's easy, it goes into your permanent memory directly if you try to do these things. So that's it from my side, and I'm leaving. I have to leave. Okay. And it was really nice catching up all of you. All the best and take care. Thank you so much, Pankaj, for joining. Okay, so let's take some questions because बहुत सारे questions आए हुए हैं. CMS students inter. Where is Anshika and Advice, Anshika? Hello, Ansika, where is her? I don't know. She's where she is. Let me check. Mm, Okay, let's just deal with this question. Rohan, advice for inter student. This is from Aman Shiny. That person is asking that there is some advice for the inter students. एक्चुअली अमन, तुम्हें सिंगल ग्रुप पेपर देना है या बोथ ग्रुप पेपर देना है? Yeah. आई थिंक और भी क्वेश्चन थे Okay. ऊपर. Let's just take him. You He's can here call. now. Aman Or Shiny, is it audible to you? Hello. उसने अपना mic mute कर रखा है. Just unmute your mic. यस सर बोल रहा है, वो सुन रहा है उसको. Okay. ठीक है. So तो अमन, तुम्हें सिंगल ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना है? किस अकॉर्डिंग तुम्हें मतलब सजेशंस चाहिए इंटर में? बोथ ग्रुप. तो बोथ ग्रुप के लिए फर्स्ट थिंग्स तो ये होना चाहिए कि आपका जो प्रिपरेशन होना चाहिए, आपकी क्लासेज अगर आप ले रहे हो या फिर बाय सेल्फ कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपका अगस्त तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए फर्स्ट टाइम. देन क्योंकि आपको 3 मंथ एटलीस्ट चाहिए फॉर रिवीजन पर्पज के लिए. एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स रिवीजन होना चाहिए फाइनल से पेपर से पहले. एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स कि जब हम रिवीजन करने बैठते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं वन बाय वन. तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप हर एक चैप्टर में ना देखो 5 to 10 क्वेश्चन होते हैं जो सबसे टिपिकल होते हैं. तो आप हर एक चैप्टर में से वो टिपिकल क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लो. एंड जब आप रिवीजन करो तो उन्हीं टिपिकल क्वेश्चंस को करो, बिकॉज जब आपने टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा तो आप एग्जाम. मेरे वॉइस रिपीट हो रही है. हेलो. कंटिन्यू रोहन. हाँ, अगर आपने टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा तो आपको एग्जाम से क्वेश्चन टफ नहीं लगेंगे, इजी लगेंगे और आराम से क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो. तो बेसिकली प्रॉब्लम यही होता है कि हम ज़्यादा स्टडी करते हैं, हम ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, बट आप कम एफर्ट लगा के भी आप ज़्यादा आउटपुट ला सकते हो. एंड रॉबिन, इसमें तुम कुछ ऐड ऑन कर सकते हो आई थिंक. मेरे हिसाब से थ्योरी सब्जेक्ट्स है जो, उसको तो बार बार पढ़ना चाहिए बिकॉज वो बंदा भूल जाता है. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हर बंदे को याद रहता है. तो थ्योरी सब्जेक्ट्स मोस्टली मॉर्निंग में बंदे को रिवाइज करना चाहिए. सेकेंडली एग्जाम में पूरा टाइम नहीं रहता. 3 घंटे में भी कुछ पेपर ऐसे होते हैं जैसे कॉस्टिंग हो गया, अकाउंट्स हो गया, वो पूरा नहीं हो पाता. तो पहले 15 मिनट जो रीडिंग के रहते हैं उसे में आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सा सॉल्व करना है, और जो नहीं आता वो लास्ट में देखना चाहिए. स्पेशली एक सजेशन मैं लॉ के सिलेबस के लिए दूंगा, क्योंकि हमारा क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे सीएमए में क्या होता है, उनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है एंड थ्योरी बहुत वीक होता है. तो मैं ये सजेशन दूंगा जो मैंने फेस किया था एंड मैंने उसको जो रिजॉल्व किया, कि आप एवरीडे आप 5 क्वेश्चंस के आंसर आप राइट डाउन करके आप सॉल्व करो. जिससे क्या होगा कि एग्जाम में होता क्या है कि हमें आता सब कुछ और थ्योरी में हम लिख नहीं पाते, हम कहाँ से स्टार्ट करें हमें ये समझ में नहीं आता. वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा अगर आप पहले से या 5 क्वेश्चन आप पहले से आप एवरीडे. totally agree. हाँ,
तो वही चीज मैं बोल रहा था, अगर दिस इज टोटली अग्रीड। आई इन इफैक्ट मैंने खुद भी ये कहीं किया था जब मैं फाइनल में था, तो मैं खुद भी आंसर्स लिखता था, क्योंकि ये प्रॉब्लम होता था कि जब हम लोग, तुमने जैसा बिल्कुल कहा कि हम लोग जब एग्जाम में फिर क्वेश्चन पेपर दिखता था ना, तो पता था कि लिख क्या है, बट वो लिखने में फिर नहीं बनता था। इंटर में मुझे ये प्रॉब्लम हुआ था कि मुझे पता था कि आंसर क्या है, बट वो लिखने में उतना नहीं होता था कि सेक्शन वाइज उसको कैसे अरेंज करके, क्योंकि लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज कि आप प्रेजेंटेशन में अपने आंसर को लिखें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक। आई डोंट नो दूसरे का क्या फ्रेमिंग द experience आंसर इज है, वेरी बट वेरी एक चीज इंपॉर्टेंट हम लॉ में प्रेजेंटेशन वाइज। अंशिका, हाँ बोलो प्लीज। हम एक चीज हम इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं कि नॉर्मली हम क्या होते हैं एग्जाम में आंसर लिख के आते हैं, अच्छे से प्रेजेंट करके भी आते हैं, लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आ पाते। तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि जब हम घर पे लिख कर देख रहे हैं उन क्वेश्चंस को, हम कंपेयर करें उसको इंस्टीट्यूट के जो लास्ट वाला एग्जाम हुआ है उसके जो सजेस्टेड आंसर्स निकलते हैं उनसे कंपेयर करें। कहीं ना कहीं हमें कंपैरिजन में पता चलेगा कि कुछ क्या प्रॉब्लम है जो इंस्टीट्यूट हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है और हम उस चीज को नहीं दे पा रहे हैं उनको। तो एक कंपैरिजन से हमें पता चल सकता है कि कहाँ पे हमारी कमी होती है। दूसरा लॉ में हमेशा सेक्शन तभी लिखेगा जब हम कॉन्फिडेंट होंगे। रॉन्ग सेक्शन कोड करोगे कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा। वो भी get set किया है। यहाँ पे एक और आंसर दे दो गाइज। यहाँ पे एक और है, आई थिंक महेश माकेश जैन है, वो ये पूछ रहा है कि हमें कितना बार रिवीजन करने की जरूरत है। 2-3 बार पंकज। करना चाहिए फाइनल से पहले। हाँ पंकज, प्लीज से यू आल्सो। देखो अभी महेश कितनी बार जैन ने रिवीजन भी, की जरूरत है? हाँ मैं बताता हूँ, महेश जैन ने भी अभी क्वेश्चन पूछा है फॉर बोथ ग्रुप्स। तो मैं बोथ ग्रुप के एंगल से ही बात करता हूँ, बिकॉज स्टूडेंट चाहेंगे कि कम से कम टाइम में अगर उनके दोनों ग्रुप हो जाए तो ज्यादा बेटर है, राइट। कोई भी नहीं चाहेगा एक एक ग्रुप करके देना ऑब्वियसली, बिकॉज मैंने तीनों ही CA, CS और ICW तीनों ही कोर्स के इंटरमीडिएट एंड फाइनल सब बोथ ग्रुप्स करके ही निकाले हैं मैंने सिंगल टाइम में, राइट। तो उसमें मैंने देखा कि बोथ ग्रुप्स निकालने के लिए क्या की है, व्हाट इज द वे। तो जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया मैं वो बताता हूँ, शायद काफी लोगों के लिए वो हेल्पफुल रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कोई इंसान बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करता है वो ऐसे करता है, मतलब जो गलतियां लोग करते हैं वो शायद ऐसे करते हैं कि 2-3 दिन पहले एक सब्जेक्ट पढ़ लिया फिर एक सब्जेक्ट। ऐसे नहीं करना हमको। जितने भी सब्जेक्ट है उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे नहीं, मंडे मतलब MWF एंड TTS 3-3 दिन में 50% सिलेबस पढ़ना है। सपोज अगर 8 पेपर हैं तो 4 पेपर हमको मंडे पढ़ने हैं, 4 पेपर ट्यूसडे पढ़ने हैं, फिर फर्स्ट वाले 4 पेपर फिर से वेडनेसडे पढ़ने हैं। ऐसे करके हमको 6 दिन में पूरे 8 के 8 पेपर का कुछ पार्ट पढ़ना है, और 7 डे संडे को हमको पूरे 8 पेपर को एक ग्लिम्स में एक बार रिवाइज कर देना है। तो ऐसे जब हम उसको पढ़ाई करेंगे तो हमारा कोई भी सब्जेक्ट पीछे नहीं रह जाएगा, और हम सारे 8 के 8 सब्जेक्ट लेके करेंगे। अदरवाइज होता क्या है, जो टफ सब्जेक्ट किसी को लगता है, फॉर एग्जाम्पल जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, बच्चे उसमें ज्यादा पढ़ाई में टाइम लगाते हैं, और जो सब्जेक्ट ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है उसमें ज्यादा टाइम लगाते जरूर है, लेकिन ये ध्यान में नहीं रहता बच्चों को कि वो भी 100 मार्क्स का ही पेपर है, और जो पेपर आसान है जिसमें कम टाइम चाहिए उसमें बच्चे कम टाइम लगाते हैं, बट वो ये भूल जाते हैं इसमें भी अगर वो ज्यादा मार्क्स ले आएंगे तो ओवरऑल इसमें भी 100 मार्क्स का ही उनके पास चांस है, जो कि वो लूज कर देते हैं। तो इसलिए उनको सारे पेपर पे इक्वल वेटेज देना चाहिए, मतलब इक्वल वेटेज का इन द सेंस उनको ऑल्टरनेट डे पे 4-4 पेपर करके पूरे 8 के 8 पेपर वीकली पढ़ने चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड ऑफ ऑल क्या होता है, जब हम एग्जाम देने बैठते हैं तो एग्जाम में जनरली जो मैंने फील किया है, जो एग्जामिनर है वो भी क्या करता है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो होता है वो जानबूझकर बच्चों के माइंड पे थोड़ा स्ट्रेस देने के लिए, उनको थोड़ा ज्यादा मार्क्स का तो ऑब्वियसली होता ही है फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, वो थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल और थोड़ा सा उसे ट्रिकी बनाता है। इसलिए मैं जो करता हूँ वो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को कभी पहले पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन से पढ़ना शुरू करता हूँ। जैसे समझ लीजिए अगर 1 से 7 क्वेश्चन है तो मैं 3 से 7 क्वेश्चन ही पढ़ूंगा, और पहले उनमें से देखूंगा इनमें से कौन से वो 2 क्वेश्चन है जिनके आंसर मैं बेस्ट तरीके से बना सकता हूँ। और अगर वो 2 क्वेश्चन के आंसर भी मेरे अच्छे तरीके से सॉल्व हो गए तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना अप हो जाता है कि फिर मैं फर्स्ट और सेकंड जो ट्रिकी क्वेश्चन है उसको ही पढ़ता हूँ, तो मेरा मोरल इतना बूस्ट रहता है, मैं उनको भी अच्छे से ग्रेस्प कर पाता हूँ, और जो एग्जाम का प्रेशर है वो मेरे ऊपर थोड़ा सा हल्का हो जाता है, और मैं अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दे पाता हूँ। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जो मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में अप्लाई की है, और बिलीव मी ये हमेशा सक्सेसफुल रही है। तो एक बार ट्राई करके जरूर देखें, आई थिंक डेफिनेटली सबको हेल्प मिलेगी इस स्ट्रेटेजी से। ओके, थैंक यू। एक और यहाँ पे है अमन शाइनी, उन्होंने बहुत पहले ही। हाँ अंशिका, यू वांट टू ऐड? हाँ, मैं
पंकज के लिए बोल रही हूँ। पंकज, काश आपने मुझे पहले गाइड किया होता ये वाली बात, कि एग्जाम में फर्स्ट और सेकंड को क्विट करके थर्ड क्वेश्चन से लाइक स्टार्ट करना चाहिए। इंटर में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मतलब फर्स्ट ग्रुप का। तो उसमें मैंने डेप्रिसिएशन का 2 मार्क्स का वो क्वेश्चन था, और उसकी वजह से मैंने इतना प्रेशर ले लिया था, मेरा पूरा एग्जाम खराब हुआ था। खैर क्लियर हो गया था एक बार में, उसका कोई इशू नहीं है, बट उस टाइम पे शायद कोई गाइड करता ठीक से तो ये इशू आते ही नहीं मेरे साथ में। हमारा सेकेंड थिंग, यहाँ पे मैं कुछ रिवीजन किया मैंने एक मेरा हम लोग की आज मीटिंग का ऑब्जेक्टिव भी यही है ना कि जो भी सीएमए स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं उनको शायद हम कुछ ऐसी ट्रिक्स कुछ दे पाए या कोई मूल मंत्र ऐसा दे पाए जो शायद उनको हिट कर जाए और उनके लिए रास्ता थोड़ा आसान हो जाए सीएमए बनने का। यही हम सब लोगों की डेफिनेटली टारगेट है। तो अंशिका, यस, कैरी ऑन। रिवीजन के लिए थोड़ा सा मैं अपना स्ट्रैटेजी बताना चाहूंगी कि मैंने कैसे रिवीजन किया था। फाइनल के बोथ ग्रुप में, फाइनल के लिए जब मैंने बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करी थी, तो मैंने रिवीजन कोई अलग से पार्ट नहीं रखा था। इवन मेरी जो स्टडीज के साथ में मैंने अपने रिवीजन को कंटिन्यू रखा था। और मैंने लाइक अपने यूट्यूब पे भी शेयर करा हुआ है कि 5 स्ट्रैटेजीज मैंने कैसे बनाई थी। मेरा क्या होता था कि अगर हम क्लास से अगर कुछ पढ़ के आ रहे हैं तो डेफिनेटली उसको आके हमें उसको रिवाइज करना है, उसको कल के लिए नहीं छोड़ना, उसको डेफिनेटली रिवाइज करना। और मेरा होता था कि मैं रिवाइज करती थी, साथ के साथ उसका शॉर्ट नोट्स जरूर बनाती थी, ताकि वो शॉर्ट नोट्स मुझे फ्यूचर में हेल्प कर सके। क्योंकि हमें भी पता है जब हम लोग पढ़ते हैं, वो कोर्स इतना वाइड होता है हम लोगों का कि हम उसको एक दिन में, अब हमें पता है एग्जाम से पहले हमारे पास सिर्फ एक दिन है, एक दिन में भी हमारे पास, बोथ ग्रुप वालों के पास तो कुछ घंटे ही होते हैं, पूरा दिन भी नहीं होता है। तो उस चीज को हम पूरे बुक को और या फिर पूरे जो हमारे नोट्स हैं उनको हम देख भी नहीं पाते, इतने वाइड मतलब कि इतने ज्यादा होते हैं वो। तो उसके लिए हमें शॉर्ट नोट्स जरूर प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैं क्लास से आते के साथ ही शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करती थी एंड देन उसको रिवाइज करती थी। तो मेरा फर्स्ट रिवीजन होता था क्लास से आकर। सेकेंड डे जब क्लास में कुछ होता था, लाइक ऑल्टरनेटिव डेज पे क्लासेस होती थी, एमडब्ल्यूएफ और टीटीएस। तो एमडब्ल्यूएफ में कुछ अगर हुआ तो फर्स्ट डे जो हुआ, सेकेंड डे जब लाइक एमडब्ल्यूएफ मंडे में मैंने कोई क्लास की, मंडे के बाद वेडनेसडे में मेरी कोई क्लास थी, तो सेकंड क्लास थी। तो मैं क्या करती थी, सेकंड क्लास का नोट्स बनाती थी आते के साथ ही। नोट्स बनाने के बाद मैं रिवीजन जो स्टार्ट करती थी वो वहां से स्टार्ट करती थी जो मंडे में मैंने पढ़ा था। तो क्या होता था, वो एक साथ ही डबल रिवाइज हो जाता था। फिर जब फ्राइडे को क्लास हुई तो फ्राइडे को मैंने नोट्स बनाए आकर, वहां से आने के बाद फिर मैंने मंडे वाला फिर रिवाइज करा, फिर वेडनेसडे वाला रिवाइज करा, देन फ्राइडे वाला रिवाइज करा। तो 3 रिवीजन एक साथ हो गए। जब मैं इतना सब एक साथ कर लेती थी तो वो चीजें ना दिमाग में मेरे बैठ जाती थी। फिर संडे वाले दिन, क्योंकि क्लासेस नहीं होती थी अगर, तो संडे वाले दिन में पूरे वीक में जो मैंने पढ़ा है और वो जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं उन शॉर्ट नोट्स से मैं रिवाइज कर लेती थी एक बार। ज्यादा टाइम नहीं होता था क्योंकि शॉर्ट नोट्स जब हम बनाते हैं तो उसमें हम जो मेन मेन चीजें होती हैं वही उठा कर लिखते हैं, पूरा वापस से कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। तो शॉर्ट नोट्स आई थिंक मेरे सक्सेस का एक सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है, शॉर्ट नोट्स बनाना। फिर उसके बाद वो शॉर्ट नोट्स मैंने बना लिए हैं, ऑलरेडी मैं 3 रिवीजन कर चुकी हूँ एक पर्टिकुलर चैप्टर के। फिर क्या, जब लाइक एग्जाम से पहले मैंने 2 महीने अपने आप को सेल्फ स्टडी के लिए दिए थे, वहां से मेरा तीसरा रिवीजन स्टार्ट हुआ था। तीसरे रिवीजन में मैंने पूरा टाइम मैनेजमेंट बनाया, टाइम मैनेजमेंट किया कि किस दिन क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, किस दिन कहाँ तक कंप्लीट करना है। उन शॉर्ट नोट्स को यूज करके मैंने वो जो मान लो मैंने 8 महीने की या 6 महीने की जो भी कोचिंग ली थी उसको मैंने 2 महीने में कंप्लीट करना था, और वो पॉसिबल था सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स से। शॉर्ट नोट्स मैंने पढ़े। फिर उसके बाद मुझे उस 2 महीने की स्टडी को मैंने लाइक 10 तारीख से हमारे एग्जाम स्टार्ट होते हैं, 10 दिसंबर से। तो मुझे क्या था, 1 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक मुझे, सॉरी 8 दिसंबर तक मुझे 8 सब्जेक्ट को एक दिन, मतलब कि जो हमने 6 महीने या 8 महीने में जो हमने स्टडी पढ़ी है उसको एक दिन में हमें कंप्रेस करना था। तो मैंने रिहर्सल करी कि हाँ मैं एक दिन में उसको कैसे कर पाऊंगी। तो मैं फिर एक एक दिन मैंने सारे सब्जेक्ट्स को दिया कि आज मेरे को फर्स्ट पेपर का पढ़ना है, कल को सेकंड पेपर का पढ़ना है। वो जो मेरे को एक दिन में, मैंने जो 8 महीने की स्टडी को मैंने एक दिन में कंप्रेस किया, वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल था तो सिर्फ शॉर्ट नोट से। और ये नहीं है कि शॉर्ट नोट्स सारे सब्जेक्ट्स के बनाओ, लाइक लो के शॉर्ट नोट्स हम बना सकते हैं फ्लो चार्ट में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन यही आता है कि हम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो उनको वैसे मैंने दिखाया हुआ अभी कि कैसे मैंने प्रिपेयर करे थे। तो आई थिंक शॉर्ट नोट सबसे बेस्ट रहेंगे मेरी तरफ से, तो यही है। एंड आई थिंक रिवीजन को और रिपीटेटिव छोड़ के रिवीजन नहीं रखना है। हाँ, और रिवीजन को आई थिंक मेरा भी एक्सपीरियंस ये है कि रिवीजन को आपको छोड़ के नहीं रखना है कि जब पूरा खत्म कर लूंगा सिलेबस उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करूंगा, रिवीजन वाला फेज स्टार्ट होगा। नहीं, यू हैव टू कीप ऑन रिविजनिंग। जो भी आप पढ़ते जा रहे हो अगले दिन उसको, या फिर 2 दिन के गैप पढ़ने के बाद ही उसको फिर से आप थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहो, देखते रहो। एटलीस्ट आप अगर आप रीड भी नहीं कर पा रहे हो तो कीप ऑन वॉचिंग इट,
देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखते भी रहोगे कोई चीज को Yeah. बार बार तो वो आपके दिमाग में बैठता है। दिस इज व्हाट अ साइकोलॉजिकल थिंग इज। तो वो देखते रहना भी बहुत जरूरी है। रॉबिन, आर यू देयर? रॉबिन, हो क्या सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ हाँ, तो तुम थोड़ा प्लीज शेयर करो अपना एक्सपीरियंस। Guys, I think I don't know I have said this or not. Robin is also All India rank 1 in June 2019 term, I guess, right? 2018 2018 हम लोगों ने साथ में एग्जाम दिया था and he got All India rank 1. So it was a very good thing when I got to know. So अपना भी एक्सपीरियंस को शेयर करो about revision, Robin. How you deal with all these things? जी मेरे पास 9 से लेकर 10 महीने थे जो मैंने अटेम्प्ट चुना था जून 18 का प्रिपरेशन करने के लिए। तो फर्स्टली मैंने फोकस किया कि अपना वीडियो लेक्चर्स वगैरह, मैंने वीडियो क्लासेस ली थी मोस्टली सब्जेक्ट्स की, तो वीडियो क्लासेस कंप्लीट करूँ और साथ साथ मैंने रिवीजन किया था उन कि मैं नेक्स्ट वीडियो क्लास तब तक नहीं लगाता था जब तक मेरा जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है उसको रिवाइज नहीं करूँ फुली। और ये स्ट्रेटजी रहता था मेरा साथ में। और 1 थ्योरी प्लस 1 प्रैक्टिकल का दूसरा स्ट्रेटजी था कि दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट साथ ही करने, एक थ्योरी चलाना है साथ और एक प्रैक्टिकल चलाना है। तो मैंने 9-10 महीनों में पूरा सिलेबस, एंटायर सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद 2 महीने मैंने पूरा रिवीजन करके एग्जाम्स दिए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा जब हम बोथ ग्रुप्स देते हैं तो हमारे पास एग्जाम्स के दौरान पढ़ने का टाइम नहीं होता है। तो वो मैंने कैसे मैनेज किया, मैं रात पे एग्जाम से जब आता था तो जल्दी सो जाता था और रात को 2 बजे उठ के टिल सुबह तक पढ़ाई करता था ताकि रिवाइज हो सके पेपर देने से पहले। Okay. Okay. So thank you so much. एक और क्वेश्चन है गाइस अबाउट स्टॉक मार्केट। एक क्वेश्चन है कि हमें इंटरमीडिएट के दौरान पे स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस अगर कोई करना चाहता है तो विल इट बी अ गुड चॉइस टू डू और नॉट? आई थिंक तो यहाँ पे इंटर के टाइम स्टॉक मार्केट नहीं स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज होता क्या है ना कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा फील्ड है, वहां पे आपको कंटिन्यूअसली जब मार्केट ऑन होता है 9:30 या 9:15 पे मार्केट ऑन होता है एंड 4:30 तक मार्केट चलता है, तो आपको कंटिन्यूअसली उस टाइम स्टॉक मार्केट में आपको इंगेज रहना पड़ता है। यानी आप अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं कर सकते हो ड्यूरिंग द पीरियड, या अगर आप क्लासेस ले रहे हो तो भी आप बार बार फोन ऑन करके उस ऐप पे यही सर्च करते रहोगे किस कंपनी का शेयर प्राइस कितना फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग जब आप इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर रहे हो तब आप स्टॉक मार्केट में इंगेज मत हो, बिकॉज आपको प्रॉब्लम्स कर सकता है अगर आपको उसका हैबिट हो गया तो इसलिए अगर आप स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हो तो आप फाइनल क्वालिफाइड के बाद जाओ तो ज़्यादा बेटर है। ओके, आई थिंक ये भी मेरा भी यही सजेशन है क्योंकि स्टॉक मार्केट डील विद मेनी थिंग्स। मतलब आपको Yeah. कीप ऑन, वो आई वॉचिंग है, यू आई कीप वॉचिंग ऑन योर हैव, हाँ, इट्स अ आई वॉचिंग थिंग। यू कैन नॉट मूव योर हेड from the share pricing and all this stuff. और stock market is very much related to financial market. तो आपको उसमें बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपको उसके अंदर काम करने के लिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप उसमें काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको उसको लेके पढ़ाई करना होगा। तो what you are going to do with the course, वो फिर आप कब डील करोगे? So it will be bit complicated if you go with the stock market while you are in a study and especially in the inter. तो बेटर है कि अगर आप कीप ऑन रिसर्चिंग अबाउट इट कि आपको कैसे करना है, कब करना है, कीप ऑन हैविंग अ स्मॉल बिट ऑफ स्टडीज, वो साइड बाय साइड आप कर सकते हो कि आप साइड बाय साइड कुछ स्टडी करो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, इंडिया में उसका क्या स्कोप है, सीएमए इसका क्या स्कोप है, कहीं पे क्या सीएमए कोई जॉब प्रोफाइल होल्ड कर रहा है कि नहीं स्टॉक मार्केट में, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, दीज आर ऑल रिलेटेड दीज काइंड ऑफ कंपनी। तो आप उसमें रिसर्च कर सकते हो। बट इंटरमीडिएट के टाइम पे आर्टिकलशिप के ड्यूरेशन में स्टॉक मार्केट में ज्वाइन करना, आई डोंट नो, बट बेटर यू डू नॉट डू एट दैट स्टेज। पहले आप इंटरमीडिएट कर लो, आर्टिकलशिप कर लो, उसके बाद यू कैन गो इन दैट। So let's take some another questions, guys. You guys, हाँ प्लीज अंशिका। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे है गाइज, कैन, दिस इज फ्रॉम वित्राग पारेख, from procedure of the campus placement from start to end. it's a big thing to discuss for procedure of the campus from starting to end.
हमने 2 मिनट orientation and all. नहीं 2 मिनट में हम ब्रीफ कर सकते हैं, उससे बता सकते हैं। देखो हाँ फर्स्टली प्लीज हाँ जब आप सी में क्वालिफाइड करते हो देन सी में इंस्टीट्यूट ओरिएंटेशन करवाती है। 12 डेज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है एंड उस ओरिएंटेशन के बाद जो ना कंपनी अपना नाम इंस्टीट्यूट के साइट्स पे अपलोड करने लगती है एंड वहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट की लिस्ट इंस्टीट्यूट पब्लिश करने लगती है। तो वहाँ से इंस्टीट्यूट के साइट पे आपका लिस्ट पब्लिश होना शुरू हो जाता है। आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि आपका शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है नहीं, और एटलीस्ट कैंपस से 15 to 20 डेज पहले मालूम चलने लगता है जो कंपनी जाती है। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो हो सकता है वो जिस दिन कैंपस हो रही है उससे 2 दिन पहले शॉर्ट लिस्टिंग करे और इंस्टीट्यूट पे अपडेट करे। तो फर्स्ट प्रोसीजर होता है शॉर्ट लिस्टिंग का, जो कंपनीज फिल्टर के अकॉर्डिंग करती है आपके रिज्यूम जो आपने प्री कैंपस प्लेसमेंट के टाइम जो आपने रिज्यूम सबमिट किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। आफ्टर दैट आपको उस कंपनी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है। कुछ कंपनीज में रिटन टेस्ट होता है, फिर जीडी होता है, फिर पीआई होता है। कुछ कंपनी सिर्फ जीडी लेती है एंड पीआई लेती है, तो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। एंड आफ्टर दैट जब आपका सिलेक्शन होता है तो कंपनी इमीडिएट आपको ऑफर लेटर दे देती है ज्वाइनिंग के लिए। दैट्स इट। या और एक और है कि जब आप कैंपस ओरिएंटेशन का जब वो जो टाइम पीरियड है ना, वो इंस्टीट्यूट जितना करवा रही है उसके बियॉन्ड भी आपको करना चाहिए कीप ऑन नॉलेज के लिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट बहुत लिमिटेड बताती है और एट ए टाइम 12 दिन के अंदर वो पूरे हर मतलब वाइडर रेंज को कवर करने का कोशिश करती है। बहुत सारी चीजों को कोशिश करती है कि कवर अप करे, तो आपको उतने चीजों के बारे में पहले से नॉलेज नहीं होता है। तो कीप ऑन स्टॉप के जितना इंस्टीट्यूट बताइए बस उतने में रुक जाएं। आप घर पे आके भी कुछ एक्सपीरियंस करो पढ़ाई से, जैसे रॉबिन ने बताया था कि आपको बेसिक्स के बारे में कीप ऑन अपडेटिंग, तो वो आप कर सकते हो। पंकज जी कुछ बोल रहे हैं? हाँ, मैं एक खुदा थॉट है वो बोलना चाहूंगा कि द मोर यू विल स्वेट इन द प्रैक्टिस द लेस यू विल ब्लीड इन द बैटलफील्ड। जितना आप प्रैक्टिस करते हुए अपना पसीना बहाएंगे उतना ही मैदान जंग में कम खून बहेगा, राइट। तो जो आपके पास ये स्टडी का टाइम है इसमें आप जितना डीपली अपने नॉलेज को एक्वायर करने पे फोकस रखेंगे, इट इज नॉट रेलिवेंट कि कौन सी कैंपस में कंपनी आने वाली। बिकॉज अगर आपके पास बेसिक्स आपके क्लियर हैं तो कोई भी कंपनी है कि देयर इज वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि आपका सिलेक्शन उसमें हो जाए। जैसे आपने अभी रॉबिन का सुना, रॉबिन ऑल इंडिया रैंक 1 है, राइट। तो डेफिनेटली रॉबिन के बेसिक्स क्लियर होंगे ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं। और रॉबिन जिस कंपनी में काम कर रहे हैं आईटीसी में, आईटीसी का जो कैंपस होता है मैं जानता हूँ वो वन ऑफ द टफ कैंपस प्लेसमेंट है सारी कंपनी में। उसमें 6 से 7 राउंड होते हैं, राइट। बट रॉबिन ने क्वालिफाई किया। कैसे क्वालिफाई किया? सिंपल हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने पढ़ाई में अपना इतना ध्यान दिया होगा कि उसके लिए कैंपस क्वालिफाई करना कंपैरेटिवली इजी हो गया। तो ये एक बेसिक चीज है कि अपने आप पढ़ाई पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें अभी, क्योंकि अभी जितनी भी हमारी ऑडियंस है वो स्टूडेंट है। आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे, अपने बेसिक्स क्लियर रखेंगे तो बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए कैंपस क्रैक करना। बिकॉज अभी आप नहीं जानते ना कि कैंपस में कौन सी कंपनी आने वाली है, बट जो भी कंपनी आएगी आपके बेसिक्स क्लियर रहेंगे तो आप फाइट करने के लिए तैयार रहेंगे उस कंपनी के लिए। ओके, एकदम। So guys, I think it's time to wrap up. It's already 2 hours 12 minutes already extended. Yeah, it's already extended where जहाँ पे हम लोग सोच रहे थे 40 मिनट्स में रैप अप करेंगे या मैक्सिमम 1 आवर जाएगा, it's double now. So I think it's time to wrap. So finally, thank you so much to all, Pankaj, Rohan, Robin, Anchika, for cooperating with me and keep on updating and keep on in touch with me हमेशा से, and इसमें इतना हेल्प करने के लिए, राजी होने के लिए कि so that we can able to keep in come in one platform. So thank you so much. And Pankaj Pachwani for you, but he left. आई होप कि हम लोग फ्यूचर में भी इस तरह से कनेक्टेड रहें, स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकें, एंड इट विल बी बेस्ट इफ वी आर कीप ऑन टच विद ईच अदर फॉर द लॉन्गर टाइम. So thank you so much. Lastly also, Anshika, can you come online or you are just, is it audible to you? Anshika and Robin. Yeah, audible. Okay. मिथुन, थैंक यू सो मच कि आपने इतने एफर्ट किया और हम सभी लोगों को एक साथ कोऑर्डिनेट करके स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए इतना पेन लिया आपने. तो रियली थैंक्स फ्रॉम माय साइड. एंड डेफिनेटली अगर दोबारा भी कभी स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए हम लोग को एक साथ आना पड़ेगा तो हम सभी लोग बहुत
खुश महसूस करेंगे एंड डेफिनेटली विल बी देयर अगेन वेरी सून। आई थिंक वी हैव टू कम इन फ्रंट, सामने आके हमें जो ये प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम लोग स्टूडेंट्स की लाइफ में हम लोग को उस समय पता नहीं चलता है, बट ये इस वक्त और पहले इतना फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं था कि लोग सामने आ सके जो प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं, बट नाउ इट्स अ टाइम के लोग सामने आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। सो अगर ऐसा हो सकता है तो इट्स बेटर कि हम लोग ऐसा करें। सो थैंक यू सो मच ऑल यू गाइस मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए, एंड आई विल बी ब्लेस्ड अगर हम लोग आगे भी कनेक्टेड रहें एंड कुछ अच्छा कर सकें। So thank you so much, lastly, and hope we'll meet soon on some live streaming platform. Otherwise, personally, though, of course, will be keep in touch with each other. Thank you so much. And lastly, those viewers who are there right now, I will share this. एक्चुअली आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू है वो कैमरा। Okay, fine. So lastly, those who are in live streaming right now, also let me tell you, we are going to place this video थोड़ा बहुत कट एडिट करके। हाँ अंशिका, यू आर सेइंग समथिंग। वॉइस ब्रेक हो रहा है उसका। इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम होगा कुछ। तो दोज हु आर इन लाइव स्ट्रीमिंग, हम लोग ये वीडियो को रिकॉर्ड किए हुए हैं, तो वी गोइंग टू पुट इन अ यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल है CMA मूविंग अहेड, रोहन का यूट्यूब चैनल है CMA रोहन शर्मा, आई गेस यही नाम है उसका, यही नाम है ना रोहन, इज इट? मेरा हर जगह सेम नाम है। मेरा डिफरेंट है या। एंड अंशिका, CMA अंशिका त्यागी, उसका भी यूट्यूब चैनल है। विल ट्राई टू कीप दिस पोस्टिंग इन द यूट्यूब चैनल सो दैट जो अभी इसमें नहीं आ पाए लाइव स्ट्रीमिंग में वो बाद में वहाँ आए, अपना क्वेश्चन प्लेस करें, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दे सकें और आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकें। So thank you so much all you speakers and the viewers for joining and making this a successful event. Thank you so much. Thank you. Thank you too. Bye, take care. Bye bye. Take Bye care bye all. all. Bye. Bye.